हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस कर लेते हैं नर्व इम्पल्स के बारे में या एक्शन पोटेंशियल के बारे में और कैसे नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है रेस्टिंग स्टेज। और जब नर्व है पोलराइज्ड स्थिति में है तो उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो द स्टिमुलेशन ऑफ नर्व एंडिंग इनिशिएट्स अ नर्व इम्पल्स। नर्व एंडिंग्स जब स्टिमुलेट होगा तभी नर्व इम्पल्स इनिशिएट भी होगा, स्टार्ट होगा। एंड इस नर्व इम्पल्स को एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। एक्शन पोटेंशियल बिकॉज देर इज इट happens because there is a difference in the electrical charges. Okay, so it is also called action potential, nerve impulse or action potential. During the resting stage, let's see, during the resting stage when there is no stimulation, the nerve is in the resting stage, the nerve cell is called as polarized. Nerve cell is polarized now, is in the resting stage, is polarized. And this is called polarized because there is a difference in the concentration of ions on either side of the nerve cell membrane. Nerve cell membrane के दोनों side में there is a difference in the concentration of ions, and that's why it is called polarized. And this nerve cell membrane is now polarized during resting stage. Okay, so this is a neuron, and you can see a stimulus approaching the dendrites and stimulates the dendrites, moves to the cell body, and from there it moves further through the axon and reaches the axon terminal and communicate it to a postsynaptic neuron. Okay, and let's see how does it happen. Okay, so the difference in the concentration, as we said earlier, the difference in the concentration of ions causes the difference in the electrical charges on either side of the nerve cell membrane. Nerve cell membrane के दोनों साइड में जो differences in the concentration of ions, ions के जो concentration, sodium ions और potassium ions के concentration की जो differences है, and that causes a difference in the electrical charges. Electrical charges nerve cell membrane के बाहर और अंदर electrical charges के difference है, वो भी इसलिए because there is difference in the concentration of ions, and this difference in the electrical charges is called resting membrane potential. क्योंकि अब जो नर्व सेल है वो रेस्टिंग में है एंड उस दौरान ये पोलराइज्ड है, एंड इस इलेक्ट्रिकल चार्जेस डिफरेंस को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब नर्व सेल मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज में है एंड उस दौरान जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस में जो डिफरेंसेस है, जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस में जो डिफरेंस है, इसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं. Okay, so sodium ions and potassium ions are those ions responsible for the difference in the electrical charges. इन electrical charges के difference के लिए जो responsible ions हैं वो sodium ion और potassium ions हैं. Okay, so ये देख सकते हैं आप, ये this is the exoplasm, means the inside of an axon, inside of a neuron, and this is the nerve cell membrane, okay, yeah, the membrane of a neuron or a nerve cell. Okay, and this is the direction in which the nerve impulse is being transmitted. Now the nerve impulse is transmitted only in one direction, and you can see this is a nerve cell membrane, and there are positively charged ions on the outside and negatively charged ions in the inside. Negative charges in the inside and positive charges on the outside. And so the inside, potassium ions are present inside and sodium ions are present out. Normally potassium ions are present inside the nerve cell membrane and sodium ions are present outside the nerve cell membrane. Let's go further. So during resting stage these ions diffuse along their concentration gradient. जहाँ पे ज़्यादा वहाँ से कम की ओर वो normally during resting stage इनकी movement होते हैं. So जैसे सोडियम आयंस जो बाहर ज़्यादा है तो धीरे धीरे वो it moves into the cell, and potassium ions moves outside. This is a normal process. Okay, during the resting stage this happens, this diffusion takes place. Okay, and so here, so sodium ions that comes in
and the potassium ions that goes out. So this during the resting stage, this is a normal diffusion process that takes place from a higher concentration to a lower concentration. Okay, then now the next is depolarization. Let's see what is depolarization is about. So during the stimulation of a nerve cell, the permeability of the nerve cell membrane changes. परमिबिलिटी मीन्स आर पार करने की, आर पार जाने की जो क्षमता, जो परमिट करने की नर्व सेल मेम्ब्रेन की उस क्षमता, वो जो परमिबिलिटी चेंज हो जाता है. एंड दिस चेंज इन द परमिबिलिटी कॉजेस सोडियम आयंस टू रश इनटू द नर्व सेल्स. इमीडिएटली द सोडियम आयंस रश इनटू द इनसाइड ऑफ द नर्व सेल के अंदर रश कर देगा सोडियम आयंस. एंड दिस कॉजेस डीपोलराइजेशन. पहले पोलराइज था रेस्टिंग स्टेज में, अब स्टिमुलेशन हुआ तब डीपोलराइज्ड हुआ. दिस कॉजेस डीपोलराइजेशन. दिस कॉजेस द इनिशिएशन ऑफ अ नर्व इम्पल्स. तो यही डीपोलराइजेशन वो नर्व इम्पल्स इनिशिएट करते हैं, या नर्व इम्पल्स या इसे एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं. तो एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स इनिशिएट करते हैं. अब ड्यूरिंग द स्टिमुलेशन what happens, sodium ions they rush into the nerve cell में ये sodium ions rush कर देगा. The sodium ions will rush into it. Okay, then and the nerve impulse is transmitted throughout the length of the neuron की पूरे लेंथ में वो nerve impulse आगे बढ़ेगा, वो भी एक दिशा में. The transmission of nerve impulse can occur only in one direction. जहाँ पे स्टिमुलेट हुआ है वहाँ से, जहाँ स्टिमुलेशन नहीं हुआ, जहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसके और एक ही दिशा में नर्व इम्पल्स आगे बढ़ेगा. फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन टू एन एरिया ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल. ओके, तो जहाँ पे स्टिमुलेशन हुआ है वहाँ से जहाँ पे स्टिमुलेशन नहीं हुआ है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, वहाँ की ओर वो बढ़ेगा. सो नेक्स्ट आता है रीपोलराइजेशन. रीपोलराइजेशन तो जब नर्व स्टिमुलेट हुआ, नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ, वो एक्सॉन में यहाँ पे सोडियम आयंस अंदर आ गया और यहाँ इस सेक्शन में नर्व इम्पल्स इनिशिएट हुआ. वो नर्व इम्पल्स आगे बढ़ता है नेक्स्ट सेक्शन में जहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है. फिर वहाँ से वो आगे बढ़ता है जो नेक्स्ट सेक्शन जहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है. वो ऐसे आगे बढ़ता है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन. So here, after that transmission of nerve impulse from one place to another, one segment to another, then thereafter repolarization starts. Then another process that starts is repolarization. Repolarization होगा. पहले resting stage में वो polarized था, एंड जब स्टिमुलेशन हुआ डीपोलराइजेशन हुआ. अब उसके बाद है जब स्टिमुलेशन आगे बढ़ गया तो रीपोलराइजेशन. ड्यूरिंग दिस फेज द पोटेशियम आयंस, सोडियम अंदर आ गया था, सोडियम अंदर है और पोटेशियम भी अंदर है, तो ये पोटेशियम आयंस को के प्लस को बाहर निकाल देते हैं. तो पोटेशियम आयंस रशेस आउट ऑफ द नर्व सेल के बाहर निकल जाते हैं, पोटेशियम बाहर निकल जाता है टू मेक अ बैलेंस. तो सोडियम अंदर रश कर दिया था, तो इसी को बैलेंस बनाने के लिए पोटेशियम आयंस बाहर निकल जाते हैं. एंड दिस पीरियड इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड. इस पीरियड को रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं जहाँ पे पोटेशियम आयंस बाहर चले जाते हैं. ओके, एंड सो पोटेशियम आयंस ये बाहर चले जाएंगे, नर्व सेल मेम्ब्रेन्स के बाहर चले जाएंगे. अब सोडियम अंदर हो गया और पोटेशियम इन लार्जर क्वान्टिटीज़ वो बाहर चले जाएंगे. ओके, तो ये नहीं है, ये ऐसे जो ये पोटेशियम बाहर जाना और सोडियम अंदर रहना ये नॉर्मल स्टेज नहीं है. जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में रेस्टिंग स्टेज में जो जिस प्रकार से इसके अरेंजमेंट थे, जिस प्रकार से ये सोडियम बाहर और पोटेशियम अंदर था, लेकिन अब जो है पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में बाहर और सोडियम ज़्यादा मात्रा में अंदर है. तो इसमें जो है जो पूर्व स्थिति में लाना है इसको, तो उसके लिए नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है सोडियम पोटेशियम पंप. सो सोडियम पोटेशियम पंप स्टार्ट होगा. सो देयर आफ्टर द एक्टिविटी ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप स्टार्ट्स. एंड सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेंगे, सोडियम जो अंदर था उसको बाहर निकाल देंगे, आर पम्प्ड आउट ऑफ द नर्व सेल, एंड पोटेशियम जो बाहर है उसको अंदर लेके आएंगे. सोडियम को बाहर और पोटेशियम को अंदर लेके आता है.
एंड दस द नर्व सेल रीगेन्स इस रेस्टिंग स्टेज। तो जैसे रेस्टिंग स्टेज में था वही स्थिति में वापस आ जाते हैं इस सोडियम पोटाशियम पंप के मदद से। ओके, तो सोडियम को क्या किया, सोडियम अंदर था तो उसको बाहर निकाल दिया, और पोटेशियम जो बाहर था तो उसको अंदर लेके आया। सोडियम को बाहर निकाल दिया और पोटेशियम को अंदर लेके आया। सोडियम को बाहर निकाल दिया और पोटेशियम को अंदर लेके आया। ये सोडियम पोटेशियम पंप का एक्टिविटी से होता है। अब देखते हैं नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन इन ए माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन में ये ट्रांसमिशन कैसे होगा? इन ए माइलिनेटेड न्यूरॉन द माइलिन शीथ इज एक्टिंग एज एन इंसुलेटर। तो एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, तो माइलिनेटेड न्यूरॉन में माइलिन शीथ है जो एक्सॉन को कवर करते हैं, एंड इनके बीच में जो एक्सपोज्ड एरियाज ऑफ एक्सोलमा है, एक्सॉन के जो मेम्ब्रेन वो एक्सपोज्ड है, वो उसे नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। एंड ये जो माइलिन शीथ है इट इज़ प्रिवेंटिंग द मूवमेंट ऑफ आयॉन्स अक्रॉस द नर्व सेल मेम्ब्रेन। ये इसके अंदर के जो नर्व सेल मेम्ब्रेन के आर पार कोई आयन्स का जो मूवमेंट है वो होने से ये रोकते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं। एंड बिकॉज क्योंकि ये जो माइलिन शीथ है इट इज़ एक्टिंग एज एन इंसुलेटर, और वो आयन्स के मूवमेंट को रोकते हैं। सो इट प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ आयन्स अक्रॉस द नर्व सेल मेम्ब्रेन wherever there is myelin sheath। myelin sheath जहाँ पे है वहाँ पे ये आयन्स है वो आर पार नहीं हो सकता है, उसका क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता, मूवमेंट नहीं हो सकता। एंड दस डीपोलराइजेशन कैन ओनली ओकर एट नोड ऑफ रैनवियर। सो जहाँ पे माइलिन शीथ कवर नहीं है वो है नोड ऑफ रैनवियर। सो सिर्फ नोड ऑफ रैनवियर में ही ये नोड ऑफ रैनवियर में ही सिर्फ ये इन आयन्स के आर पार जो क्रॉसिंग है ये हो सकता है, एक्सचेंज है, मूवमेंट हो सकता है सिर्फ नोड ऑफ रैनवियर में। तो व्हाट हैपेंस, द नर्व इम्पल्स विल जंप फ्रॉम वन नोड टू अनदर। तो इनके बीच में कोई नर्व इम्पल्स जो आयन्स है उनकी मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ कहाँ पे हो पाएगा? सिर्फ नोड ऑफ रैनवियर में। तो ये नर्व इम्पल्स है, नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन सिर्फ नोड ऑफ रैनवियर में होगा, एक नोड से दूसरे जो नोड में वो लीप कर देगा। ओके, एंड सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्सॉन है, और एक्सॉन का कवर करते हुए माइलिन शीथ है, ये सब माइलिन शीथ है, और जहाँ पे एक्सॉन एक्सपोज्ड है इन एरिया को नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। ये नोड ऑफ रैनवियर है। सो नर्व इम्पल्स के जो ट्रांसमिशन है वो प्रोपगेशन है वो सिर्फ नोड ऑफ रैनवियर में ही हो सकता है, जैसे कि वो आयन्स के मूवमेंट सिर्फ इन्हीं जगहों पे हो सकता है। तो वो लीप करते हैं एक नोड से दूसरे नोड पे। ओके, तो ऐसे लीप करने की वजह से, जंप करने की वजह से क्या होगा, जो नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन है उसकी गति है, स्पीड है, वो बढ़ेगा। सो इट कॉजेस फास्टर ट्रांसमिशन। So the depolarization will jump from one node to another, and this type of propagation is called saltatory propagation। इस प्रकार की जो jumping, leaping from one node to another in a myelinated neuron, and such propagation, such movement of nerve impulse is called saltatory propagation। इसे saltatory propagation कहते हैं। and transmission of nerve impulse is faster। ऐसे जो नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन है वो फास्टर है, कंपेयर अगर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन से कंपेयर करेंगे तो ये फास्टर ट्रांसमिशन है। ओके, सो ये जंप फ्रॉम वन नोड टू अनदर, दैट मेक्स इट फास्टर। सो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन इन अ नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। व्हाट हैपेंस इन अ नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन? In a non-myelinated neuron, depolarization has to travel all along the length of the nerve cell। nerve cell के पूरे लेंथ में ये जो मूवमेंट ऑफ आयन्स है वो होना है। So it has to go from one segment to next segment, next to next, next to next. So it has to travel all over the length of the nerve cell membrane। So this type of propagation of nerve impulse is called simple propagation। इस प्रकार की जो propagation है इसे simple propagation, साधारण propagation, simple propagation कहते हैं। And the transmission of nerve impulse is slower in a non-myelinated neuron। myelinated में वो jump कर सकते थे, यहाँ पे jump नहीं, पूरे length में जाना है तो it takes time, and इसीलिए ये slower है, makes it slower। So it has to go all along the length of the nerve cell membrane
एंड कोई जंपिंग नहीं होगा, तो दिस मेक्स इट स्लोवर. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट नर्व इम्पल्स. ओके, पहले रेस्टिंग स्टेज में पोलराइज्ड, फिर स्टिमुलेशन होगा तो डीपोलराइज्ड होगा, फिर उसके बाद रिफ्रैक्टरी पीरियड में रीपोलराइज्ड होगा, जहाँ पे पोटेशियम को बाहर निकाला जा रहे हैं या बाहर निकल जाते हैं. और फिर उसके बाद है लास्ट में सोडियम पोटेशियम पंप, तो उसमें सोडियम को बाहर निकाला जाएंगे और पोटेशियम जो बाहर गया था उसको अंदर आता है, जो पूर्व स्थिति में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्टिंग स्टेज में वापस आ जाते हैं. तो ये नर्व इम्पल्स की फिजियोलॉजी था, और माइलिनेटेड न्यूरॉन में कैसे वो प्रोपोगेट करते हैं नर्व इम्पल्स, वो जंप करते हैं, लीप करते हैं, उसे सॉल्टेटरी प्रोपोगेशन कहते हैं. और नॉन माइलिनेटेड में जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है वहाँ पे वो पूरे एक्सॉन के लेंथ में उसे मूव करना है. दैट टाइप ऑफ प्रोपोगेशन इज कॉल्ड सिंपल प्रोपोगेशन, वो स्लोवर भी है.